So students, today we will be discussing about the Mendel's laws, and Mendel have given three laws of heredity, or you can say genetics. And the name of these three laws is the principles of dominance, principle of segregation or purity of gametes, and third one is the principle of independent assortment. So these three laws are given by the Mendel, and generally we call them principles of inheritance. And the first law, which is very easy, simple also, and you have studied in 10th standard, that principle of dominance, or you can say law of dominance. So what is the law of dominance? As we all know that whenever we take two contrasting alleles, and in that two contrasting alleles only one expresses itself in an individual, and the other factor which cannot express itself. So such situation, in one which is able to express itself is known as dominant, while the other which has not shown its effect is known as recessive. So when it is homozygous, true breeding tall plants, suppose we are talking about the true breeding tall plants that are crossed with homozygous dwarf plants. Now what I am telling to you is that suppose this is capital T, you can say that it is homozygous true breeding tall plant, and this is crossed with true breeding, this is the dwarf plant. Small t is denoted for the dwarf plant. तो ये homozygous हैं, दोनों ही हैं homozygous हैं, but this is the tall one and this is the dwarf one. तो you made a cross in between these two plants. आई विल चेंज द कलर. जब आप इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो इन द फर्स्ट जनरेशन यू फाइंड दैट ऑल द प्लांट्स आर टॉल. ये सारे प्लांट्स जो है आपको कैसे मिलेंगे? टॉल मिलेंगे, जितने भी प्लांट्स मिलेंगे. दिस इज़ इन द केस ऑफ F1 generation. So that means you get all plants which are tall, first generation. F means filial generation, FILIAL, filial. F means होता है filial generation. तो these all plants are tall, although they have received a factor from the dwarf plant. ऐसा नहीं है कि इनके अंदर इस वाला मतलब ये dwarf वाले का कोई पार्ट नहीं आया है बट स्टिल दे शो द टॉलनेस. डॉफनेस वो शो नहीं करते बिकॉज इट इज़ रिसेसिव, हिडन. रिसेसिव मीन्स इट इज़ हिडन कैरेक्टर एंड इट रीअपियर्स इन द सेकेंड फीलियल जनरेशन. अब अगर आप इसके बीच में क्रॉस कराओगे इन दोनों के बीच में तो ये सेकेंड जनरेशन में आएंगे. आई हैव शोन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो. आई हैव मेड द डायग्राम this one. With the help of this diagram you can easily understand. Here I draw the tall plant. I have taken capital T homozygous, or you can say two breeding, and this is dwarf plant. This is small t. It is also two breeding plant, and हम इसका क्रॉस कराते हैं जब, तो when we ये दिस इज़ कॉल्ड पुनेट स्क्वायर. ये जो स्क्वायर सा बना हुआ ना, दैट इज़ कॉल्ड पुनेट स्क्वायर, इसको हम कहते हैं. तो आप सबको पता है कि इसमें हमने क्या करना होता है. जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर गोइंग टू मेक द क्रॉस बिटवीन दिस, इनके बीच में हमने क्रॉस कराना है. तो एक साइड में हम कैपिटल टी गैमेट्स रखेंगे, कैपिटल टी, और एक साइड में स्मॉल टी. देन वी टेक दिस एंड दिस, कैपिटल टी स्मॉल टी. देन वी टेक दिस एंड दिस, कैपिटल टी स्मॉल टी. देन अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. देन वी कैन राइट इट लाइक दिस. अलग से भी हम इनको बाद में उठा के रख सकते हैं, है ना, ऐसे करके. तो ये हमको एक जनरेशन दिख जाएगी कि किस तरह से आई है. तो उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया. तो यू कैन सी इट हेयर. In F1 generation all plants are tall because you have studied in this principle, that means in the principle of dominance, that there are two alleles of the same characters or trait, but one is dominant and another is recessive. That means only one can express itself, another is नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ. तो यहाँ पर कैपिटल टी मीन्स ये डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है टॉलनेस के, तो इसने शो किया अपने आप को. तो सारे प्लांट्स जो थे फर्स्ट F1 जनरेशन में कैसे आए, हमारे पास टॉल प्लांट्स आए. देन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज़ दैट हमने इनकी सेल्फिंग करा दी. दैट वी हैव टेकन दिस, जो इसी में से पॉलन ग्रेन्स हमने जो ले लिए, सीड्स हमने जो ले लिए, तो वो हमने यहाँ पर ले लिए, इन्हीं में से दोनों को करा दिया. कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, इन्हीं को मैंने यहाँ पर बनाया है इस तरीके से. कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको सेल्फिंग कराना कहते हैं कि इन्हीं दोनों में से किसी को ले लिया हमने. एंड जब हमने सेल्फिंग कराई है तो यू कैन सी दैट हमें ये वाला जो है वो रिज़ल्ट ऑब्टेन हुआ है. दिस वन, ये वाला रिज़ल्ट ऑब्टेन हुआ है. पूरा नीचे जो है नीचे लिखा हुआ है ये. एंड यू कैन सी दैट
here one is tall, another is tall, this one is also tall, and this one is dwarf. And this is the phenotypic expression. Phenotypic means, I have told you that phenotypic means the characters which you can see by through your observation. आपने देख मतलब ऊपर से फिजिकल अपीयरेंस, तो ये भी कैपिटल टी है, ये भी इसमें एक कैपिटल टी है, दैट मीन्स इट इज़ डोमिनेंट, एंड स्मॉल टी इज़ द रिसेसिव. तो एक्सप्रेस कौन करेगा? डोमिनेंट वाला करेगा. तो इट इज़ ऑल्सो टॉल, दिस इज़ ऑल्सो टॉल, एंड दिस इज़ डॉर्फ बिकॉज इट हैज़ स्मॉल टी. टू स्मॉल टी हैं, दैट मीन्स रिसेसिव कैरेक्टर्स दोनों जीन्स में से आए हैं, एक एक एलील्स, एंड देयर विल बी नो डोमिनेंट एलील, दैट्स वाई. तो यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो कैसा हुआ? 3.1. दैट मीन्स यू कैन से ईजिली बाई वॉचिंग दिस कि यहाँ पर जो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स हैं, यू कैन सी इट ओनली. आपको ये नहीं पता होता कि अंदर कौन से जीन्स होंगे. आपको यहाँ पर सारे टॉल दिख रहे हैं ये वाले, बट यू कैनॉट नो द जीनोटाइप. तो जब आप उसका क्रॉस कराते हैं, देन यू विल गेट टू नो कि यहाँ पर तो ये प्योर है, कैपिटल टी दिया हुआ है ना, तो दिस इज़ प्योर. दिस इज़ हाइब्रिड, क्योंकि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी. दिस इज़ ऑल्सो हाइब्रिड. दिस इज़ प्योर ड्वार्फ. तो 3 तो टॉल हो गए और 1 हो गया ड्वार्फ. तो दिस रेशियो इज़ 1:2:1. ये हो गया आपका जीनोटिपिक रेशियो, एंड दिस वन इज़ फिनोटिपिक रेशियो. बिकॉज जीन का कॉन्ट्रीब्यूशन तो यही है, कैपिटल टी. ये टॉल है 1, 2 हाइब्रिड हैं, दैट मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी आपको 2 ऑब्टेन हुए हैं, तो दैट मीन्स ये 2 हाइब्रिड हैं, तो 2 लिखेंगे आप. जीनोटाइप इसका है ना. देन 1 स्मॉल टी, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो होमोजाइगस बट ड्वार्फ प्लांट. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डोमिनेंट. कैसे डोमिनेंट कैरेक्टर्स अपने आप को इनहेरिट करते हैं, ये उसके बारे में बताया हुआ है कि इन फर्स्ट जनरेशन यू विल नेवर नो कि इनके अंदर क्या है. यू जस्ट परसीव दैट ऑल द प्लांट्स आर टॉल. तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई सारे टॉल हैं, अब इसमें ड्वार्फ का तो कोई एलील नहीं है. बट अगर आप अगेन उन्हीं सीड्स को फिर से आप सो करते हैं, तो आप क्या पाएंगे कि इन द नेक्स्ट जनरेशन, उसी सेम प्लांट की नेक्स्ट जनरेशन, दैट मीन्स F2 जनरेशन, यू विल गेट टू नो दैट देयर इज़ रिसेसिव कैरेक्टर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट. क्योंकि आपको 3:1 का रेशियो मिलता है, 3 टॉल मिलेंगे और 1 ड्वार्फ मिलेगा. दैट मीन्स दैट कैरेक्टर वॉज हिडन समवेयर, कहीं पे छिपा हुआ था, आपको दिख नहीं रहा था फर्स्ट जनरेशन में. तो देयर आर सर्टन कंक्लूजन कैन बी मेड फॉर द लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए कुछ कंक्लूजन्स निकल कर आए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने बोला कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई द सर्टेन यूनिट्स, स्पेशल यूनिट्स दैट आर नोन एज फैक्टर्स. क्योंकि उस समय मेंडल को ये नहीं पता था, ही डिड नॉट नो द जीन्स. उस समय जीन्स क्या होते नहीं पता था, तो ही सेड दैट समथिंग विच इज़ कॉल्ड फैक्टर. लेटर ऑन वी कॉल देम जीन्स, बट अर्लियर इट वॉज नोन एज द फैक्टर. सो दैट्स वाई फैक्टर को आप जीन ही समझो. कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई द सर्टेन डिस्क्रीट यूनिट्स नोन एज फैक्टर्स, एंड फैक्टर्स अकर्स इन पेयर. जैसे अब तो हम जानते हैं कि जीन्स अकर्स इन ऑलवेज इन पेयर्स, है ना. ऐसे हम लिखते हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीन ही तो है. ये एलीलिक पेयर्स हो गए, एक दूसरे के एलील्स हो गए, स्मॉल टी. ये बोथ आर एलील टू ईच अदर, बट दिस इज़ अ जीन, ये जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो फैक्टर्स अकर्स इन पेयर लाइक दिस, and in a dissimilar pair of factor, like I am talking about this and this, one member, that means one member of this pair is dominant and another one is recessive. ये दोनों ऐसे हो सकते हैं. and this one fails to appear, ये दिखता नहीं है बिकॉज दिस इज़ रिसेसिव. अगर अब इस तरह का कोई प्लांट हो जिसका जीनोटाइप ये हो, तो प्लांट विल बी टॉल इन दिस केस. तो ये आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें ये स्मॉल टी वाला भी कोई पार्ट इसके अंदर होगा. तो अब ये तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो इफ़ you have to write in the form of definition, you can say that the law of dominance means कि out of two contrasting alleles only one expresses itself in an individual, whereas the factor that expresses itself is known as dominant, while the other which has not shown its effect is known as the recessive character. And इसी से मिलता जुलता एक, अच्छा उसके पहले एक चीज़ और भी मैंने आपको बतानी है, दैट इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना. ये भी चीज़ हो सकती है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस की क्या इंपॉर्टेंस है. तो फिनोमिना जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, इट हैज़ वेरी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस एज द हार्मफुल रिसेसिव कैरेक्टर्स रिमेन हिडन बाय द नॉर्मल डोमिनेंट कैरेक्टर्स. जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यू कैन सी, आप ऑलवेज जो प्लांट देखेंगे तो आपको लगेगा कि इट्स टॉल,
दैट मीन्स ओनली कैपिटल टी इज़ देयर, स्मॉल टी के बारे में तो आप सोचोगे भी नहीं। तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि हम लोगों में भी, इन प्लांट्स में, इन एनिमल्स ऑल्सो, इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, देर आर सर्टन कैरेक्टर्स विच आर रिसेसिव, विच आर हिडन। वो हमें दिखते नहीं हैं क्योंकि ये वाला जो है इसको छिपा लेता है, नॉर्मल डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो छिप जाता है। तो ये, अब ये तो हाइब्रिड है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इन हाइब्रिड्स में मोस्टली क्या होता है कि रिसेसिव कैरेक्टर्स विल बी हिडन एंड दे एक्सप्रेसेस इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। तो देयर आर सर्टेन डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं ह्यूमन बींग्स में, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, एंड इडियोसिटी भी ऑल्सो, जिसको आप मंदबुद्धि होना कहते हो। तो वो चीज़ भी है, वो रिसेसिव फॉर्म में है। तो वो रिसेसिव होने की वजह से वो कुछ जनरेशन्स में वो दिखाई नहीं देती, एंड लेटर ऑन इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस और कह सकते हैं आप लॉ ऑफ डोमिनेंस का कि क्या है। तो हार्मफुल रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो हिडन हो जाते हैं, ये एक इसका बहुत बड़ा नुकसान है। वो चाहे प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे हों या वो हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हों। तो व्हाट आर द वेरियस इम्पोर्टेंस ऑफ द मेंडलिज्म। तो मेंडलिज्म के जो कैरेक्टर्स हैं इनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस को, बट नाउ वी आर गोइंग टू discussing about the another principle, that is law of segregation and law of purity of gametes, because इसी की हेल्प से हम वो भी पढ़ सकते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स होता है सेपरेशन, किसी चीज़ को सेपरेट करना, किसी चीज़ को अलग करना, दैट इज़ कॉल्ड सेग्रीगेशन। तो व्हाट इट स्टेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग अगर आप डिफाइन करेंगे तो व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स, और यू कैन से व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग एलील्स, और यू कैन से जीन्स, जो भी आपको ईजी लगे। अगर आपको जीन्स ईजी लगते हैं तो आप डेफिनेशन में जीन्स ले सकते हो कि व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग जीन्स आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, ऑफ कोर्स इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, these factors do not mix up and they simply associate themselves and remain together and separate at the time of gamete formation. Simply आपको सुनने में टफ लग रहा होगा, but if I will define you, it will be very easy for you with the help of a illustration. Suppose यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कैपिटल T एंड स्मॉल t, सपोज सिंपल ये एग्जांपल आप ले लो, इनका हम क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल T और स्मॉल t से। तो आपको ये लगता होगा कि ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी इनकी मिक्सिंग हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता है। जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बोली उसने यही बताया कि व्हेन एवर यू टेक द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए, एक कैपिटल टी टॉलनेस के लिए हो गया और ये ड्वार्फनेस के लिए हो गया, तो दे आर कंट्रास्ट ना। तो इफ़ दे आर प्रेजेंट इन अ हाइब्रिड, डेफिनेशन कोई मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये हाइब्रिड के फॉर्म में प्रेजेंट है, दिस इज़ अ हेट्रोजाइगस कंडीशन। दीज फैक्टर्स डू नॉट मिक्स अप, ये फैक्टर्स दोनों आपस में कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स नहीं होंगे। दे सिंपली एसोसिएट देम सेल्फ, ये साथ साथ तो रहते हैं कुछ टाइम के लिए, बट दे विल बी सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन। जब गैमिट बनने का वक्त आएगा तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी है यहाँ पर, दे बोथ आर टुगेदर, बट नाउ यू कैन सी इन दिस, यहाँ पर इस वाले में आप देखो जब आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेट कर देते हैं, कैपिटल टी सेपरेट कर लेते हैं, ये स्मॉल टी हैं तो यू विल सेपरेट देम। तो ये मिक्सिंग नहीं हुई है ना, वो अलग हो गए एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, बिकॉज दीज आर द गैमिट्स। ये जो यहाँ पर रखे जाते हैं, ये जो रखे हुए हैं, दीज ऑल आर द गैमिट्स, तो ये कभी भी मिक्स नहीं होते। तो द आइडिया ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज दैट ब्लेंडिंग नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है, क्योंकि हम लोग के माइंड में आ सकता है कि दोनों साथ साथ हैं तो इनमें ब्लेंडिंग हो जाती है, बट देयर विल बी नो ब्लेंडिंग। तो यू कैन से दैट दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो एनी मिक्सिंग और डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स, मीन्स ड्वार्फनेस एंड टॉलनेस मिक्स नहीं हो जाते हैं, एंड दे कैन बी रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन्स। कैसे, जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे थे टॉल कैरेक्टर था एंड ड्वार्फ कैरेक्टर था ना, तो यहाँ पर तो सारे टॉल आ गए, तो आप सोच सकते हो कि समवेयर जो ड्वार्फनेस है वो तो कहीं गायब हो गया, मतलब फिनिश ही हो गया, वो तो कैरेक्टर ही नहीं रहा। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आप इन्हीं के सीड्स को वापस बोएंगे तो जो या सेल्फिंग कराएंगे आपस में, इन्हीं का पॉइनेशन कराएंगे, क्रॉस पॉइनेशन कराएंगे, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं इन्हीं प्लांट्स के लेंगे और फिर से न्यू प्लांट्स आप प्रोड्यूस करेंगे, तो यू विल गेट टू नो दैट हेयर बोथ द थिंग्स, दैट मीन्स बोथ कैरेक्टर यू विल फाइंड, टॉलनेस भी आपको मिला और ड्वार्फनेस भी मिला। तो दैट मीन्स यू कैन रिकवर इट इनटू द F2 जनरेशन। दिस इज़ द F2 जनरेशन, क्योंकि उन्हीं की सेल्फिंग से बना हुआ है, तो यू कैन रिकवर इज इन द F2 जनरेशन, दो
वन ऑफ दीज इज़ नॉट सीन इन एट F1 स्टेज, है ना, ये F1 स्टेज में आपने नहीं देखा इनको, स्मॉल टी का कुछ पता नहीं चला, आपको लगा कि है ही नहीं, उसके अंदर फिनिश हो गया है, लेकिन पेरेंट्स में दोनों एलील्स थे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में, तो गैमेट फॉर्मेशन में ये बन गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि दिस इज़ फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का आइडिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए ही है। I hope you can understand these two laws. In next lecture we will discuss the third law, that is principle of independent assortment.